all are doing very good. Today, students, we are going to start our new chapter of class 3rd, which is chapter number 3 about animals eating habits. So, आज हम different types of animals की different eating habits discuss करेंगे. See, all living things need food to live and grow. Food gives them energy to do their activities. Different animals have different food and feeding habits. According to the different food habits, they are divided into different groups such as herbivores, carnivores and omnivores. So students, सभी living things को क्या food की requirement होती है to live and to grow. Because food क्या provide करता है, energy provide करता है हर एक living organism को उनकी different life activities को perform करने के लिए. अब हर एक animal की एक different food and feeding habits होती हैं. एंड उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग इन एनिमल्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है लाइक हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. एंड नंबर 1 विच वी हैव इज हर्बीवोर. सो एनिमल्स दैट ईट ग्रास, लीव्स एंड प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. अब वो एनिमल्स जो सिर्फ ग्रास, लीव्स एंड प्लांट्स को खाते हैं उन्हें हर्बीवोर्स कहा जाता है. एग्जाम्पल काउ, हॉर्स, गोट, जिराफ, जेब्रा एंड डियर एक्सेट्रा, दे ऑल आर हर्बीवोर्स. Then next we have carnivores. Animals that eat the flesh of other animals are called carnivores. वो animals जो दूसरे animals के flesh को, meat को खाते हैं, उन्हें carnivores कहा जाता है. Example lion, cheetah, wolf, tiger, fox, walrus, etc. These are carnivores. Next we have omnivores. Animals that eat both plants and other animals are called omnivores. अब वो animals जो दोनों ही चीज़ें खा सकते हैं यानी कि plants को भी खा सकते हैं, दूसरे animals के flesh को भी खा सकते हैं, उन animals को omnivores कहा जाता है. Example bear, crow and human being. Human beings are also omnivores only. Okay? Now, how animals eat? अब कैसे animals खाते हैं वो हम discuss करेंगे. Different animals have different mouth part that are suited to the kind of food they eat. So different animals eat different types of food. अब हर एक different animal के पास एक different mouth part होता है जो उनके खाने के अकॉर्डिंग यानी कि जिस तरीके का खाना खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके लिए बेस्ट सूटेड होता है. That means what कि हर एक एनिमल के पास different type का फूड होता है जो वो खाते हैं. जैसे कि हर्बीवोर्स के पास क्या दे हैव फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग टीथ. यानी कि जो टीथ होते हैं वो फ्लैट एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं. They need to chew a lot in order to break down the food into smaller pieces. They have sharp front teeth to bite leaves and grass called incisors. They have flat back teeth, premolars that help them to chew easily. So, अगर हम herbivores की बात करें तो इन्हें क्या खाने को बहुत ज़्यादा chew यानी कि चबाना पड़ता है so that क्या हो सके उस खाने को बहुत छोटे छोटे pieces में break किया जा सके. इनके जो फ्रंट टीथ हैं, आगे वाले जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं जिसके थ्रू ये क्या ग्रासेस को, लीव्स को बाइट करते हैं एंड इनके फ्रंट टीथ को क्या इंसीजर्स कहा जाएगा. उसके बाद इनके जो बैक टीथ हैं वो फ्लैट होते हैं, थोड़े मोलर्स कहते हैं एंड इसी के थ्रू ये क्या करते हैं अपने फूड को इजीली च्यू करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी कम टू व्हाट दैट सम हर्बीवोर्स लाइक काउ, शीप एंड कैमल swallow their food without chewing it. सो कुछ ऐसे हर्बीवोर्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने को सोलो यानी कि निगल लेते हैं विदाउट चूइंग इट, उसको चबाए बिना, जैसे कि काउ, शीप, कैमल. ओके, सी after some time, after कुछ देर बाद what they do, they bring back their food in mouth and chew it properly. This is called chewing of cud. फिर कुछ देर बाद ये एनिमल्स क्या करेंगे उस खाने को दोबारा से क्या अपने माउथ में लेकर आते हैं और उसके बाद उसे प्रॉपरली च्यू करते हैं जिसको क्या कहा जाता है chewing of cud. Some herbivores like squirrel, mice and rabbit have 2 long pairs of front teeth. उसके अलावा कुछ ऐसे भी herbivores हैं like squirrel, mice, rabbits. ये क्या कहते हैं इनके पास 2 long pair होते हैं front teeth के. Okay, the 2 long pair of teeth, and ये 2 long pair and teeth के they are used like chisel to gnaw on hard food like nuts and fruits. And इन teeth को ये क्या hard food items खाते हैं like nuts and fruit उसको अच्छे से gnaw कर सकें. And this is called gnawing of food. इसे क्या कहा जाता है gnawing of food. Okay, now next we come to carnivores. Carnivores have sharp, long and pointed teeth to hold and tear the flesh. अब carnivores के पास कैसे teeth होते हैं, sharp, long and pointed होते हैं because ये क्या खाते हैं दूसरे animals के flesh को खाते हैं so that ये easily animal के flesh को hold and tear कर सके, इसलिए इनके teeth काफी sharp, long and pointed होते हैं. And इन teeth को क्या बोला जाता है, they are called canines. ठीक है, they have sharp and large back teeth. इनके जो back teeth है वो भी काफी sharp and large होते हैं which are called molars and premolars. इन teeth को क्या molars and premolars कहा जाता है जिसके through they chew the flesh. उसके बाद molars and premolars का use करके ये अपने उस flesh को chew करते हैं. They do not chew their food properly and swallow large pieces of flesh. ये उस फूड को या जो फ्लैश के पीसेस होते हैं उनको प्रॉपर्ली च्यू नहीं करते हैं. बड़े बड़े पीसेस जो होते हैं फ्लैश के उनको सिर्फ क्या कर लेते हैं थोड़ा बहुत च्यू करके सोलो कर लेते हैं.
Some carnivores like snake and frog swallow their food whole without chewing it. कुछ carnivores ऐसे भी हैं जो अपना food पूरी तरह बिना उसको चबाए, बिल्कुल भी, like snake and frog. Omnivores have sharp teeth. Omnivores कौन से animals थे जो कि plant and animals दोनों को खा सकते हैं. So omnivores के पास कैसे teeth होता है? Sharp teeth होते हैं like carnivores की तरह, and also have flat teeth like herbivores. And flat teeth भी होते हैं जैसे herbivores के पास होता है. इसीलिए तो ये ग्रीन प्लांट्स प्रोडक्ट को एंड एनिमल्स को भी खा सकते हैं. दे हैव शार्प फ्रंट टीथ कॉल्ड इंसीजर्स. इनके पास जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शार्प होता है जिनको इंसीजर्स कहा जाता है, जिसको ये फूड को बाइट करने के लिए यूज करते हैं. उसके अलावा दे हैव पॉइंटेड कैनाइंस फॉर ग्रिपिंग एंड टेयरिंग ऑफ फूड. उसके बाद इनके जो कैनाइंस हैं वो पॉइंटेड होता है जिससे ये फूड को ग्रिप करके टीयर करते हैं. दे हैव लार्ज एंड फ्लैट बैक टीथ कॉल्ड मोलर्स एंड प्रीमोलर्स. उसके बाद इनके जो बैक टीथ है वो काफी लार्ज एंड फ्लैट होता है जिनको मोलर्स एंड प्रीमोलर्स ही कहा जाता है. एंड दे यूज इट फॉर क्रशिंग फूड इनटू स्मॉल पीसेस. यानी अपने मोलर्स एंड प्रीमोलर्स का यूज करते हैं फूड को क्रश करने के लिए इनटू स्मॉल पीसेस. डॉग्स एंड कैट यूज देयर टंग टू ड्रिंक वाटर एंड मिल्क. उसके बाद डॉग्स जीभ का यूज करती हैं वाटर एंड मिल्क को ड्रिंक करने के लिए. दे ड्रिंक लिक्विड विद द हेल्प ऑफ द टंग. दिस इज कॉल्ड लैपिंग. ये पानी को या कोई भी लिक्विड चीज को जो ड्रिंक करते हैं वो अपने टंग का यूज करके करते हैं एंड दिस इज कॉल्ड लैपिंग. ओके, नेक्स्ट. चल, next. Some animals like lizards, chameleon and frogs have long and sticky tongue to catch their prey. उसके बाद lizard, chameleon and frogs ये कुछ ऐसे animals है जो अपनी लॉन्ग यानी कि जो टंग है काफी लॉन्ग एंड स्टिकी होती है एंड इसी का यूज करके ये अपने प्रे को क्या करते हैं? कैच करते हैं. ठीक है. बर्ड्स हैव बीक इन प्लेस ऑफ टीथ. दे डू नॉट हैव टीथ टू च्यू देयर फूड. अब अगर बर्ड्स की बात करी जाए तो बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते हैं. टीथ की जगह इनके पास क्या होती है? बीक होती है, चोंच होती है, जिसका यूज करके ये क्या करते हैं? खाने को खाते हैं. यानी कि बेसिकली इनके पास टीथ नहीं होते हैं सो दैट दे कैन च्यू देयर फूड. नेक्स्ट, बटरफ्लाई. बटरफ्लाई हैज लॉन्ग ट्यूब टू सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर. बटरफ्लाई के पास एक लॉन्ग ट्यूब होती है जिससे ये फ्लावर्स के नेक्टर को सक करती है. ओके, देन वी कम टू मॉस्किटोज. मॉस्किटोज आल्सो हैव लॉन्ग एंड पॉइंटेड ट्यूब टू सक देयर फूड. ये है मॉस्किटो. मॉस्किटोज के पास भी एक लॉन्ग एंड पॉइंटेड ट्यूब होती है जिससे ये किसी भी एक पर्सन के ब्लड को, क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone. क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone. क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone. क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो that's all for the chapter. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thanks to everyone. क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. विल मीट यू वेरी सून. टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स टू एवरीवन. क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. विल मीट यू वेरी सून. टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स टू एवरीवन. क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर टू यू. विल मीट यू वेरी सून. टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स टू एवरीवन. क्योंकि ब्लड ही इनका फूड होता है, उसको सक करते हैं. ओके, चल. सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. आई होप इट वाज वेरी क्लियर.